Children, in the last class we have studied how to use screw gauge to find diameter of a wire of any object. This time we are going to learn about zero error of the screw gauge. Now there are two possible errors in screw gauge, zero error or backlash error. Today we will talk about zero error. What is zero error? Similar to vernier calipers, if you bring in contact this flat end of the screw, which is called spindle, and this stud like this, always rotate the screw with help of ratchet, and then see this click sound, and the spindle and the stud are in contact. Now we have to check whether zero of the circular scale is along the baseline or not. If zero of circular scale is along the line of the reference line, then we say that there is no zero error. If this zero is above the reference line like this, if the zero of circular scale is above the reference line, then it's negative zero error. If this zero is below the reference line like this, if the zero of the circular scale is below the reference line, then we call it positive zero error. So now we are going to understand how to remove positive zero error. We have already understood that what is positive zero error. When zero of circular scale is below the reference line of the main scale. So note down the definition of zero error. When flat end of a screw, that is a spindle, is brought in contact with the stud, if zero of circular scale coincides with the baseline of the main scale, baseline or reference line, then we say that a screw gauge is free from zero error. But if spindle and stud, when placed in contact, zero of circular scale is not coinciding with the baseline, we say there is zero error in the screw gauge. Then zero error are of two types as in case of vernier calipers. If zero of circular scale is below the reference line, then zero error is positive. And if zero of circular scale is above the baseline, then zero error is negative. So we start with the positive zero error. So now let us see this screw gauge. This is the case. Zero of circular scale is below the reference line, and we want to find positive zero error. To calculate positive zero error, we need to find coinciding division of circular scale. Coinciding division of circular scale is, see, this is zero, so first line, second line, and the third line is coinciding with the reference line. So we will write third line is coinciding, then we will multiply 3 with the least count of the screw gauge, and that will be positive zero error, and we know that we have to subtract the error with sign from the observed value. So let us first write the coinciding division. So we have written coinciding division is third, then positive zero error is 3 into least count, and that will be 3 into 0.001, and that is 0.003 centimeter or 0.03 millimeter. Now least count of this screw gauge we have already calculated in previous class, and that was, least count of this screw gauge was pitch, that was 0.5 millimeter. Distance moved by this screw, ये जो सर्कुलर स्केल है ये एक स्क्रू पे अटैच है, तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो स्क्रू इस मेन स्केल में आगे बढ़ता है, ये याद है ना पिछली बार, स्लीव में आगे बढ़ता है. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड अहेड or in backward direction when one complete rotation is given to this circular scale is called pitch. So that was 0.5 millimeter, and
The total number of divisions on this screw gauge, circular scale of screw gauge was 50. This was 0 mark and this was also 50th mark. So 50. So this is 0.01 millimeter. So this is simple way how to calculate zero error, positive zero error. लेकिन अब हमने इसको ऐसे क्यों कैलकुलेट किया और फिर हम करेक्ट रीडिंग इसको माइनस करके क्यों निकालेंगे? करेक्टेड रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर with sign, that is plus sign. So observed reading जो भी हो उसमें से हमको प्लस 0.03 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें इस केस में करेक्ट रीडिंग मिलेगी. तो अब हमें ये समझना है कि माइनस क्यों करना पड़ेगा. अभी हम इस बात को ध्यान से समझेंगे. ये हमने ट्रांसपेरेंट एक सिलेंडर लिया है जो सर्कुलर स्केल को रिप्रेजेंट करता है और ये स्लीव को रिप्रेजेंट करती है. अगर स्टड और स्पिंडल को मिलाने से ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन तो ज़ीरो एरर नहीं है. लेकिन अगर ये ज़ीरो पहले ही रुक जाता है, जैसे इस केस में 3 डिवीजन्स पहले रुक गया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ज़ीरो और इस सर्कुलर स्केल के एज के बीच ये थोड़ी सी डिस्टेंस ये पीछे है. स्क्रू पूरी तरह से स्लीव में फिट नहीं हो पाया है. इतनी डिस्टेंस जो ग्रीन शेडेड है ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे है. जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब ज़ीरो रेफरेंस लाइन को बिल्कुल कोइंसाइड करे तो जो सर्कुलर स्केल की एज है वो इस ज़ीरो के पैरेलल हो. सर्कुलर स्केल की एज ज़ीरो के पैरेलल हो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करे. लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है. देखो इसमें, तो देखो अगर ये इस डिवीज़न पर ही रुक जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है स्क्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी डिस्टेंस स्क्रू पीछे रह गया अपनी एक्चुअल पोजीशन से जहां उसे करेक्टली होना चाहिए था. तो ये डिस्टेंस ही एरर है और ये डिस्टेंस हमेशा हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में एडिशनल मिलेगी. तो करेक्ट रीडिंग के लिए हमें इस एडिशनल वैल्यू को उससे माइनस करना होगा. ये एडिशनल मिलेगी, इसको समझने के लिए तुम एक स्केल और एक छोटा सा पीस ऑफ आइसक्रीम स्टिक उसको लो और इसको समझो कि ये ऐसा क्यों है कि हम कह रहे हैं कि इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. नाउ टेक एग्जांपल ऑफ दिस स्टिक. अगर इस स्टिक की सही लेंथ हमको लेनी है तो इसका जो ये एंड है, ये ज़ीरो है, इसका जो एज है ये इस ज़ीरो से कोइंसाइड करनी चाहिए. तब हम इसकी सही रीडिंग ले पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 4.8. ठीक है. लेकिन अगर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये स्टिक कुछ ऐसे रखी हुई है, इस स्टिक के इस एज को तुम सर्कुलर स्केल की एज समझो. तो सर्कुलर स्केल की एज अगर ज़ीरो से पीछे है और मान लो कि 3 डिवीजन्स पीछे है, मान लो इतना पीछे है, तो ये एरर मान लो 1 2 3, ये 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस इस स्टिक की डिस्टेंस में एडेड मिलेगी हमको, क्योंकि हमको 4.8 नहीं मिलेगा, हमको मिल रहा है 5.1. यानी कि जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से 3 मिलीमीटर ज़्यादा है. तो जो ये रीडिंग, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा लेंथ इसकी लेंथ में मिली हुई है, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 5.1 में से हमको 3 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमको करेक्ट रीडिंग 4.8 मिलीमीटर मिलेगी। यही प्रिंसिपल, यही लॉजिक बिहाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। क्योंकि अगर सर्कुलर एज मेन ज़ीरो से इतना शेडेड पार्ट पीछे है, तो ठीक उसी लॉजिक की तरह ये डिस्टेंस स्क्रू गेज की हर डायमीटर की ऑब्जर्व्ड रीडिंग में एडेड मिलेगी, मतलब रॉन्ग मिलेगी, इतना एक्स्ट्रा हमको उस रीडिंग में मिलेगा। तो हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करें और ये पता करें कि ये कितनी लेंथ है, उसके लिए हम वही सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि भाई अगर इसको आप एक स्क्रू गेज लो, अगर आप इसको पूरा एक रोटेशन घुमाते हो, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और ये है आपका ज़ीरो, ये। अब अगर आप इसको, इसमें टोटल 50 लाइंस हैं, ठीक है, अगर आप इसको पूरा 50 लाइंस के इक्वल घुमा दो तो ये एक पिच की लेंथ के बराबर आगे बढ़ जाता है, ये हमको पता है। इसको पूरा 50 लाइन घुमाया तो ये एक पिच यानी 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ गया। तो अगर आप इसको सिर्फ, ये ज़ीरो है आपका, आप इसको सिर्फ 1, 2 और 3, सिर्फ 3 डिवीज़न का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए, तो ये कितने पीछे हटा? एक कंप्लीट रोटेशन में पिच के बराबर आगे या पीछे हटेगा, और एक कंप्लीट रोटेशन में 50 डिवीजन्स का घूमना होता है। तो जब सिर्फ एक छोटा डिवीज़न पीछे, एक छोटा डिवीज़न घूमेगा आगे या पीछे, तो स्क्रू कितना आगे या कितना पीछे जाएगा? 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, स्क्रू ऑफ द स्क्रू गेज मूव्स इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू लेंथ पिच, ठीक है। और एक रोटेशन में कितने डिवीजन्स का मूवमेंट होता है? 50 डिवीजन्स का। तो अगर सिर्फ 3 डिवीजन्स का मूवमेंट हुआ, सिर्फ 3 डिवीजन्स का, तो उसे पता करने के लिए कि वो कितना आगे या कितना पीछे मूव हुआ, हम कह सकते हैं कि अगर 50 डिवीजन्स का मूवमेंट हुआ था तो जो स्क्रू है वो पिच के बराबर, यानी इस केस में 0.5 मिलीमीटर के बराबर आगे या पीछे बढ़ा था। तो अगर सिर्फ एक डिवीज़न का मूवमेंट हो, मूवमेंट ऑफ ओनली 1 डिवीज़न, तो स्क्रू कितना आगे या पीछे बढ़ेगा? 50 डिवीज़न के मूवमेंट पर पिच के बराबर, तो एक डिवीज़न के मूवमेंट पर पिच अपॉन 50 डिस्टेंस, इतना आगे या पीछे बढ़ेगा मिलीमीटर्स में। तो 3 डिवीज़न के लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ 3 डिवीजन्स, 3 इंटू पिच अपॉन 50 क्या है? 50 है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। और ये तो आपका लीस्ट काउंट है। तो जो भी कोइंसाइडिंग डिवीज़न है उसको जब आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस पीछे रह गया ये सर्कुलर स्केल का एज इस ज़ीरो से मैच करने से। यानी इतनी एडिशनल डिस्टेंस या लेंथ हर ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड रहेगी और हमको इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा मिलेगी, इतनी लेंथ एक्स्ट्रा मिलेगी हर रीडिंग में। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो कि ये सही हो, ये करेक्शन हो, तो सोचो तुमको 1, 2 और 3, ये 3 डिवीजन्स का मूवमेंट देना पड़ता तो ये इस शेडेड कवर को पार्ट कर लेता। यानी 3 डिवीजन्स की डिस्टेंस का एरर है। तो इसलिए हम लोग लीस्ट काउंट को जो कोइंसाइडिंग डिवीज़न है उससे मल्टीप्लाई करके पहले तो एरर निकाल लेते हैं और उसके बाद पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी जबकि आपका ज़ीरो
इस मेन स्केल ज़ीरो के पीछे हो, के रेफरेंस लाइन के पीछे हो, तब हम उसे ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हम जहाँ से मेज़र करना शुरू कर रहे हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट ना होकर हमने अपनी स्टिक को ज़ीरो से आगे रखा हुआ है। तो ये जो स्केल की एडिशनल लेंथ है ये हर एक लेंथ में एक्स्ट्रा मिल रही है, बिल्कुल इस केस की तरह जहाँ जिसे हम मेज़र कर रहे हैं उसे हमने इनिशियल पर नहीं रखा है ज़ीरो पर, बल्कि उससे 3 डिवीज़न पीछे रखा हुआ है, मतलब इतनी डिस्टेंस पीछे रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी एक्चुअल लेंथ में इतनी लेंथ एक्स्ट्रा मिल रही है। तो ये वजह है कि हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर को ऑब्जर्व्ड रीडिंग से सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं और क्यों हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो निगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से आगे निकल जाता है। ठीक, यानी कि जो मेन स्केल का ज़ीरो था, ये जो एज है सर्कुलर स्केल की, इसको इस ज़ीरो पर आके रुकना था जब स्क्रू ठीक से अंदर आ जाता, लेकिन ये जो एज है ये मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल गई। तो इतना शेडेड पार्ट अब हमारी रीडिंग में गायब रहेगा और जब हम रीडिंग लेंगे तो एक्चुअल लेंथ से कम रीड करेंगे। कैसे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम करेक्ट पढ़ना चाहते थे तो जो सर्कुलर स्केल की एज है उसको मेन स्केल के ज़ीरो पर होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें एरर है और ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर चला गया तो जो सर्कुलर स्केल की एज है वो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चली गई, यानी ऐसे। ऐसे अब इतना डिस्टेंस आना क्या चाहिए था, इसकी एक्चुअल रीडिंग हमें पता है 5.9 थी, लेकिन अगर ये इस तरीके से रखी है, ये सर्कुलर स्केल की एज है वो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल गई है, तो जो इतनी डिस्टेंस है वो अब हमारी एक्चुअल रीडिंग में कम दिखाएगी, हमेशा इतनी डिस्टेंस गायब मिलेगी। तो ऑब्वियसली इतनी डिस्टेंस हमको पता करके हमेशा ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ये डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। जैसे इस केस में ये 4.6 रीडिंग आ रही है, इंस्टेड ऑफ 4.9 ये 4.4 रीडिंग आ रही है 4.9 की जगह, यानी 5 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है और वो 5 मिलीमीटर है ये डिस्टेंस। तो अगर सर्कुलर एज मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल जाएगी और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया तो ये शेडेड पार्ट की डिस्टेंस आपकी हर रीडिंग में कम आएगी। आपको करेक्ट रीडिंग के लिए ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से इतनी रीडिंग ऐड करनी पड़ेगी। आपको अगर सही चाहिए तो आपको 4.4 में ये जो 5 मिलीमीटर के बराबर रीडिंग है ये ऐड करनी पड़ेगी। गायब थी ये रीडिंग आपकी असली ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से, तब आपको इस स्टिक की करेक्ट रीडिंग 4.9 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये वजह है कि क्यों हम ऐड करते हैं निगेटिव ज़ीरो एरर को। और अब सवाल आता है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल देखो सेम लॉजिक, ये कितना ऊपर चला गया, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न। अगर ये 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न पीछे की ओर घुमा दें इस तरीके से, ये देखो ये ज़ीरो जो है ना ये 3 डिवीज़न्स आगे निकल गया है। और अगर आप चाहते हो कि रीडिंग का करेक्शन हो तो एक्चुअल क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो इस रेफरेंस लाइन पर होना चाहिए। तो देखो हमें कितना घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज किए पीछे आए स्क्रू, 1 डिवीज़न, फिर 2nd डिवीज़न और फिर 3rd डिवीज़न। 3 डिवीज़न इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो 3 डिवीज़न के बराबर कितना इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, 1 डिवीज़न, फिर 2 डिवीज़न और फिर 3 डिवीज़न, और ये ज़ीरो रेफरेंस लाइन पर आ जाएगा। मतलब
3 डिवीज़न के बराबर एरर, 3 डिवीज़न के बराबर नहीं, 3 डिवीज़न रोटेट करने पर ये जितना पीछे चलेगा उतनी एरर हमारी रीडिंग्स में गायब है, जो कि हम ऐड कर देंगे। तो 3 रोटेशन घुमाने पर कितना पीछे आएगा? 3 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट नेगेटिव 0 एरर हुई। अब हम लोग करते क्या है, अगर ये इस तरीके से हमारी रीडिंग आती है, इस तरीके से देखो, ठीक है ना, हम पूछते कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो आप रीडिंग में पढ़ोगे ये 45 है, तो ये 46 है, तो ये 47th डिवीज़न, आप बोलते हो 47th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर आप 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये ब्लू शेडेड पार्ट पीछे आ जाएगा और ये जो एरर है ये करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप कोइंसाइडिंग डिवीज़न अगर देखो तो आप 47th कोइंसाइडिंग डिवीज़न देख रहे हो, तो 3 डिवीज़न कैसे मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न्स 50 हैं, उसमें से आप 47 डिवीज़न जो कोइंसाइड कर रहा है उसे माइनस कर दो, तो वो डिवीज़न्स जो तुम्हें वापस घुमाना है, वो डिवीज़न्स जिसके बराबर, वो डिवीज़न्स जिनके घुमाने पर पीछे आने वाली लेंथ ये ब्लू शेडेड रीजन है जो कि एरर है, वो आपके कैलकुलेशन में आ जाएगी। इसलिए हम लोग पहले देखते हैं कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है और फिर उसको जो टोटल डिवीज़न होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल जो रोटेशन का एरर है वो सबसाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव 0 एरर में पहले देखते हैं कि कोइंसाइडिंग डिवीज़न कितना है। कोइंसाइडिंग डिवीज़न 47th है हमारे केस में, तो नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट करते समय हमें पता है कि 3 डिवीज़न्स के बराबर घुमाना पड़ेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वो पीछे आए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 50 माइनस 47 यानी 3 इंटू लीस्ट काउंट। जब लीस्ट काउंट से 3 डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी जो हमारी सर्कुलर स्केल आगे बढ़ गई थी और जितना सर्कुलर स्केल को पीछे आने की ज़रूरत है, एंड 3 इंटू लीस्ट काउंट विल बी द नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर विल बी सब्सटीट्यूटेड विद माइनस साइन, so correct reading will be observed reading minus negative 0 error with sign. So this error is minus 0.03 millimeter or minus 0.003 centimeter. So this is all about negative 0 error, how to calculate negative 0 error, and why we subtract the positive 0 error and we add the negative 0 error.